Today we are starting post-independence, and we'll talk about the integration of the princely states. Okay. So at the time of independence, in 1947, India was divided into two set of territories. Okay, and the first being the territories under the control of the British Empire, and the second was being the territories over which the crown has suzerainty. Okay, so we have the at the time of independence we have the two set of territories. First set of territories was under the control of the British Empire. Okay, under the British Empire, and second set of territories were under the princely princes. Okay, princes. Okay, under the princes which under the princes which have or who have accepted the suzerainty of the crown. Okay, or you can say paramountcy of the crown, right? Now now next is that in addition to this there are several colonial enclaves. Okay, there are several colonial enclaves, right? There are several colonial enclaves that were under the control by the France and Portugal. Okay, and the political integration of these territories into India was declared objective the Indian National Congress. Okay, so we have already seen, we saw that there are two types, that is the British provinces, British territories. Okay, and that is the another was the princes. Okay, under the territories and the princes which have established the sovereignty, and some other territories. In addition to these territories, some territories were under the control of the and the Portugal. Okay, Portugal, right? And these territories basically, and the aim of the Congress was basically to unite these territories. Okay, aim of the Congress was that to unite this, to integrate all these territories, to integrate all these territories. Okay, so how will it happen? Okay, how will it happen? So there was a combination of factors which have worked on it. Okay, like Sardar Vallabhbhai Patel and the VP Menon convinced the rulers of the various princely states to accede to India. Okay, that is the Sardar Vallabhbhai Patel and VP Menon. Basically, they convinced the princely states rulers to accede to India and secure their accessions. Okay, now by 1956, there was little difference between the territories that had been part of the British India and that were under the princely states. Okay, and through a combination of diplomatic and military means, they basically integrated the various territories which were either under the control of the Sardar Vallabhbhai Patel, or under the control of the British Empire, or to the other foreign rulers like France and Portugals. Okay, Portugals that were integrated into India. Okay, now how these princely states were integrated. So let us talk about it. Okay, we saw what was the how was the princely states were existing actually. That was the British provinces and the provinces under the crown. Okay, and some additional territories under the other imperial powers like France and Portugals. And what are the role of the we'll talk about in detail the Sardar Vallabhbhai Patel roles in the integration, but we saw in brief that the Sardar Vallabhbhai Patel, okay, and the VP Menon played a great role in the integration of these territories into India, and through the combination of the diplomatic and military method. Okay, now next is princely states in British India. Now the early history of British expansion in India, we already find that we already have seen in the modern history that the British had the expansionist policy. Okay, expansionist policy. British had the expansionist policy, and that was through the two means. Okay, that were two ways of annexation, two ways. Okay, that expansion policy कैसे था? Expansion policy की बात करते हैं. Expansion policy was two ways. First was policy of annexation. ठीक है, policy of
annexation, ठीक है। तो what was the policy of the annexation? The policy of annexation was basically that where the British sought to forcibly absorb the Indian princely states into the provinces, which constituted their empire in India. Okay, annexation was what was the annexation? Annexation was that the British basically क्या करते हैं कि फोर्सिबली अब्जॉर्ब कर लेते हैं इंडियन पिछले स्टेट्स को, और को है अपने एम्पायर में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल ब्रिटिश एम्पायर। ओके, एंड सेकेंड पॉलिसी जो था वो इनडायरेक्ट रूल था। इनडायरेक्ट रूल, व्हाट वाज द इनडायरेक्ट रूल? इनडायरेक्ट रूल ऐसा था कि डैट द प्रोविंसेस का जो प्रिंस होता था, they have accepted the or assumed the they have accepted the sovereignty of the British, okay, and in this way they have considered but they have accepted the sovereignty, but the British had granted them a varying degree of internal self-government. Okay, so what we see here that the British adopted the two ways of expansion policy. British adopted two ways of expansion policy, ठीक है, expansion policy. What was that expansion policy? First was the annexation. Annexation was that गया उसको, ठीक है, मारा, फोर्सिबली किया, फोर्स से, बाई फोर्स किया, उसको लड़ाई किया, उससे झगड़ा किया, ठीक है, और उसको जो है अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। दूसरा क्या पॉलिसी था जी? दूसरा पॉलिसी हो सकता है, दूसरा पॉलिसी है कि दे हैव बेसिकली व्हाट दे डिड, दे बेसिकली asked the princes to accept their sovereignty, okay, sovereignty, but with the little interference in their kingdom, okay, and they have allowed their internal self government, okay, in the varying degrees, okay. That is indirectly first policy we see the annexation policy. Second was the policy of indirect rule, where the British assumed the sovereignty and paramountcy over the princely states, but considered them sovereignty and varying degree of internal self government, okay. Now हमने देखा है कि 1857 के बाद जो है हमने देखा था कैसे जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो था ब्रिटिश का चल रहा था बिफोर 1857, ठीक है, how was the expansionist policy was undergoing on, okay, but after the 1857 revolt, the British changed their policy, okay, and they basically renounced the annexation policy, okay, and British and next and after that the British relations with the remaining princely states thereafter, okay, were based on the subsidy alliance, okay. What was the subsidy alliance? Subsidy alliance was basically where the British basically exercised the paramountcy over the all princely states, ठीक है, मतलब उनका जो paramountcy में उनका कंट्रोल था, सोवरेनिटी था, सारे पर अप्लाई होता था, but British but at the same time they respected and protected their allies, okay, and taking control of their external relations, ठीक है। तो ये ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश हो गई एम्पायर यहाँ पर, ठीक है, और ये हो गया प्रिंसेस हो गया, ये प्रोविंसेस हो गया, ठीक है, और अब इस पर कंट्रोल करना है, ठीक है, इस पर इसको कंट्रोल करना है, तो इसने तो इस पर कंट्रोल कर लिया, इंडिविजुअली कंट्रोल किया, एक्सेप्टेड, उसके बाद बहुत सारे ट्रीटीज के साथ साइन कर लिया, ठीक है, आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इसका जो अपना जो काम कर सकते हैं, आपका जो एम्पायर है आप अपना रेगुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो एक्सटर्नल अफेयर्स आपका होगा ये ब्रिटिश जो है सरकार होगी मैनेज करेगी, ठीक है, ओके, मैनेज करेगी इसको, ऐसा इन लोग से एलाई बन गया इनके साथ, ठीक है। 1858 के बाद ऐसा हो रहा था, ठीक है, बट एन एग्जैक्ट रिलेशन जो था सबके साथ जो था अलग अलग वो लोग ट्रीटी साइन कर लेते थे, ठीक है, और इस तरह से उनको जो कुछ मतलब कि आप अपना इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी तो कुछ पावर चाहिए, तो इसके लिए वो कुछ पावर कंसिडर कर देखते थे, ठीक है, और इस तरीके से अपना जो है 1858 के बाद कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हुआ, बट आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ
फेडरल गवर्नमेंट। ओके, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या था कि दैट टाइम द प्रोविजन वाज बेसिकली दैट देयर विल बी यूनियन गवर्नमेंट and the federal government, that all the princely states will be here under the, okay, that is the twist tier of the government, like है ना, हम लोग अभी देखते हैं जैसे स्टेट सेंटर है, स्टेट है, उसी तरह का प्रिंसली स्टेट्स होगा एंड ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स एंड दैट वी आर बी बीइंग यूनाइटेड अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, दैट इज प्रिंसली स्टेट्स and the British India, we are being united into the federal गवर्नमेंट। ओके, फेडरल गवर्नमेंट। ओके, ऐसा चलेगा। लेकिन क्या ये प्रोविंस या क्या प्रोविज़न जो था इफेक्ट आया? आपने पढ़ा होगा कि जो है ये प्रोविज़न जो था इफेक्ट नहीं हो पाया। वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 1935 का जो प्लान था, ठीक है, 1935 का प्लान था जो प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द फेडरल गवर्नमेंट फेल्ड। Why it failed? Why it failed? So the reason was that in the 1939 the Second World War started. Okay, and the first reason and second reason was the major reason, basically you can say, is that the princes were not ready for federation. Okay, so all these things led to the failure of the provision of Government of India in 1955. Now let us talk post independence. Now we all talked about, we have already have some introductions. Okay, let us revise some points. Okay, we already saw that there was the provinces, that the provinces were basically two types, like the British provinces and provinces under the princely princes। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया का जो प्रोविंसेस था और ये था प्रोविंसल थे, ठीक है, प्रोविंशियल अंडर द प्रिंसेस। ओके, प्रोविंशियल अंडर द प्रिंसेस एंड दिस वेर बेसिकली एंड सम अदर एडिशनल कौन से थे जो कि आपको जो थे अदर एम्पायर्स थे, अदर फॉरेन पावर्स थे उसके अंदर में थे, जैसे फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया। फिर उसका इंटीग्रेशन पॉलिसी अपनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द विप्रो के द्वारा, and they basically through their diplomatic and military means they integrated these territories into India. Okay, now we saw that how the princely states developed in the British India, so that we have already seen that the policy of that the British had adopted the annexation policy for the expansion, for the British had the expansionist policy, and that was through the means of the annexation and through the paramountcy. The annexation was basically that they completely integrated that province under their control, and that was through the forcibly through the force. Okay, and other was through the indirect rule, and that was possible through making the princes to assume their sovereignty, accept their sovereignty and paramountcy, and granting them varying degree of internal self-government. Right, now next comes how that in the 1858 how the British policy changed, and that was that we have already seen. Okay, and then we talked about that how the government of India in 1975 tried to integrate this province British India and the princely states. Okay, but how does it feels like? Reason was that the princes were not ready, and second reason was that the outbreak of the Second World War. Okay, now we'll talk about the post-independence. Okay, we talk about pre-independence, what was happening. Now we'll talk about the post-independence. Okay, so neither paramountcy nor the subsidiary alliance could continue after independence. Right, अब हम देखेंगे जैसे इंडिपेंडेंट हुआ तो जैसे भारत और पाकिस्तान, ठीक है, पहले भारत मतलब कि जैसे इंडिपेंडेंट, जैसे ब्रिटिश ने जैसे ग्रांट कर दिया आपको इंडिपेंडेंस, जब ग्रांट कर दिया, अब ये तो जो पारामाउंटेंसी था या सबसिडी अलायंस था या फिर कोई ट्रीटीज थी, तो ये ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रोविंसेस के बीच में थी, ठीक है। अब इसको या प्रिंसली स्टेट के बीच में थी, तब इसको जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो यहाँ पर जो है अब उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन था कुछ अलग था, ठीक है। लेकिन अब ये जो इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंडिया के साथ, तो टर्म्स एंड कंडीशन अब एक्सेप्ट करेंगे तब ना जी, क्योंकि जो है एक हम देख सकते हैं कि बाद में जो ब्रिटिश जो है अपने कहती है कि एक अलायंस इम्पोर्ट ऑब्लिगेशन जो था
ब्रिटेन पर, वो अपना विड्रॉ कर लेती है, कहती है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जिसका जो रूलर है अपना अपना जो अपना डिसाइड करे जहाँ जाना है उसको, इंडिपेंडेंट रहना तो इंडिपेंडेंट रहे, या फिर ब्रिटिश इंडिया के साथ ज्वाइन करना तो इंडिया के साथ ज्वाइन करे, ठीक है। और जो है ब्रिटिश जैसे ही विड्रॉ करेगी, इंडिपेंडेंट ग्रांट करेगी, तो इसके साथ ही जो जितने भी उसके जो एग्रीमेंट हैं, ट्रीटीज़ हैं विद द प्रिंसली स्टेट, दैट वुड कम टू एन एंड। ओके, नाउ ये ऐसा सिस्टम होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में सिचुएशन क्रिएट होता है। तो अब जो है अब उस समय जो है प्रिंसली से ऑलमोस्ट 559 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। तो नीड फॉर इंटीग्रेशन, तो देयर वेयर ऑलमोस्ट 559 प्रिंसली स्टेट्स। द सौराष्ट्र एंड कठियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात वेयर होम टू ओवर 200 प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। सौराष्ट्र एंड कठियावाड़ रीजन जो था गुजरात का, वहाँ पे ऑलमोस्ट जो थे 200 प्रिंसली स्टेट थे, एंड मैनी भी द नॉन कॉन्टिजियस टेरिटोरीज, ठीक है। मतलब वो इरेगुलर थे, मतलब कि जैसे कि एक प्रोविंस जो था, ऐसा नहीं था कि मतलब देखिए, एक यहाँ पर मैंने मान लिया कि किंगडम है, ये मान लिया कि हमारा भारत हो गया, ठीक है, हमारा भारत हो गया, ठीक है। और ये मान लिया कि अपना कठियावाड़ रीजन हो गया, ठीक है, गुजरात साइड में, ठीक है। अब मान लिया कि एक यहाँ पर ही मैंने मेन इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसका जो है एक रीजन जो होगा छोटा सा यहाँ पर कंट्रोल होगा, इसका अंदर कंट्रोल होगा, इसका यहाँ पर कंट्रोल होगा, ठीक है। और कुछ जो होगा इसका रीजन, अब मान लिया कि ये हो गया और इसके बीच में फिर एक सिटी होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका ये होगा, ठीक है। तो बीच में याद आ रहा है, और ये जो कंट्रोल इसका जो है, मतलब मान लिया कि ऐसे हो गया, ठीक है। और इसका रीजन इधर कंट्रोल पूरा है, लेकिन ये जो है इसका कंट्रोल इसके ऊपर इसका है, इस पर। इस तरह से नॉन कॉन्टिजियस रीजन्स थे ये, ठीक है। और नॉन कॉन्टिजियस रीजन होने के कारण इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो द टर्मिनेशन ऑफ द परमानेंटेंसी वुड हैव इन प्रिंसिपल मीन दैट ऑल राइट्स दैट फ्लोड फ्रॉम द स्टेट्स रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश क्राउन वुड रिटर्न टू देम। जैसे ही मतलब कि जैसे ही ब्रिटिश परमानेंटेंसी जो है, जैसे ही कंट्रोल जो था, जैसे टर्मिनेट होगा, जैसे ख़त्म होगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लिया कि हमने आपको बोला कि हमने आपको जो बोला है कि हमने आपको कुछ अपना राइट दे दिया, ठीक है, मैंने आपको कुछ राइट दे दिया, लेकिन जैसे ही अभी ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जितने हमने पावर आपको दिए थे ये सारे मेरे पास आ गए, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया तो हम डिसाइड करेंगे हमको का इंडिपेंडेंट रहना है कि क्या करना है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। और इसमें से आपने देखा होगा कि क्रिप्स प्रपोजल में भी था कि दैट द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी दैट सम स्टेट्स कैन माइट चूज टू स्टैंड आउट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक। तो क्रिप्स प्रपोजल हमने देखा था कि कुछ ऐसा ही प्रोविजन बनाया गया था कि प्रिंसली स्टेट चाहे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, ठीक है। बट ये जो प्रोविज़न था कि हमने देखा था कि कांग्रेस को एक्सेप्टेंस नहीं था, अनएक्सेप्टेबल था कांग्रेस को, ओके। एंड इसको जो था दैट कांग्रेस सॉ रिगार्डेड इट एज द बल्कनाइजेशन ऑफ द इंडिया, ओके। एंड ओके, नाउ वी ऑलरेडी सी ऑल दिस थिंग्स, ओके। नाउ तो बल्कनाइजेशन हो जाएगा, टूट जाएगा भारत इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। तो कांग्रेस का अब क्या करना है, तो ऐसा मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गया कि हमने देखा कि 559 स्टेट थे, 559 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। अब इनको प्रिंसली स्टेट थे, और वो जो थे सौराष्ट्र और गुजरात की अगर बात करें, सौराष्ट्र कठियावाड़ की बात करें गुजरात रीजन वाला में, तो वहाँ पर जो था आपको लगभग 200 प्रिंसली स्टेट थे, और वो भी नॉन कॉन्टिजियस थे। और नॉन कॉन्टिजियस होने के कारण जो था इनको इंटीग्रेट करना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था। और दूसरा ये था कि जो ब्रिटिश के साथ जो भी इनका जो ट्रीटीज़ था या फिर जो एग्रीमेंट था, ये ब्रिटिश परमानेंटेंसी के था, ब्रिटिश परमानेंटेंसी के साथ था। और ब्रिटिश परमानेंटेंसी ख़त्म होने के साथ ही इनके पास जो पूरा पावर, कंप्लीट पावर रिटर्न हो जाएगा, और इसके बाद जो है ये अपना जो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रोविज़न जो था, आप देख सकते हैं कि सेम प्रोविज़न जो है ब्रिटिश के द्वारा भी सपोर्ट किया गया था क्रिप्स मिशन में। वहाँ पर इसको बोला गया था कि जो भी अगर चाहते हैं प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहना, वो रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है कांग्रेस जो थी, कांग्रेस को ये डेनियल था, कांग्रेस को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था ये कि कोई भी इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट रहे, ठीक है। ओके, क्योंकि इससे हुआ कि भारत जो है टूटा सा हो जाएगा, पहले ही टूटा था और अभी भी टूटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर फिर से टूटा हुआ तो बल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा सिचुएशन, ठीक है। तो बल्कनाइजेशन हो जाएगा इंडिया का। तो इस तरीके से सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा था। अब देखिए, हमें अब देखने की बात है कि कांग्रेस जो था, कांग्रेस का
अगर ऐसा हो सकता था कि कांग्रेस पहले से काम करती रहती कि हम सबसे पहले से जोड़ के रखते हैं प्रिंसली स्टेट्स के साथ, हम बाद में से इंडिपेंडेंट होगा सबको अपने में शामिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए कांग्रेस जो थी मतलब कि पहले से शुरू से ही जो लेस एक्टिव थी प्रिंसली स्टेट में। क्यों लेस एक्टिव थी? और जब लेस एक्टिव रहेगी प्रिंसली स्टेट में, इसका कारण क्या था? बिकॉज they have the limited resources. Why they have the limited, less active in the princely state? They were less active in the princely state because they had the limited resources, okay, which restricted their ability to uh, organize their and their focus on the goal of independence of British India। ठीक है, तो मतलब सबसे शुरू में जो मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसे की रिसोर्सेज जरूरत पड़ती है, मैन पावर की जरूरत पड़ती है, तो इनके पास, कांग्रेस के पास शुरू में तो बहुत ही कम था, तो प्रिंसली स्टेट में उनका कंट्रोल नहीं था, कम। ठीक है, उसके बाद दूसरा इनका कारण था कि ये लोग ज़्यादा फोकस इंडिपेंडेंस पर देना चाहते थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस पर टाइम देना चाहते थे। ठीक है, उनको अभी डर था कि अगर हम मान लीजिए प्रिंसली स्टेट के साथ अगर हम कुछ पहले से ही उनके अंदर में, जैसे मान लीजिए अगर क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कोई किंग है, तो किंग को अगर हमको सबड्यू करना है तो वहाँ की जनता को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, जनता से उसको रिवोल्ट करना पड़ेगा इसका अगेंस्ट में, तब जाके होगा ना जी। तो अगर आप यहाँ पर अगर जनता के बीच में कुछ अगर फूट डालने लगेंगे तो ये जो प्रिंसेस होंगे ये आपको भड़क जाएंगे पहले से, तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगा, जो कि हो सकता है कि ब्रिटिश के साथ जो इंडिपेंडेंस का फाइट हो रहा था उसमें एक ट्रबल क्रिएट कर देगा। ठीक है, और ये भी, और चौथा कारण ये था कि महात्मा गांधी, चौथा कारण क्या था? महात्मा गांधी का था कि भैया तुम जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो प्रिंसेस हैं, उनको रूल करने दो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि इट वाज इससे क्या होगा कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, उनको अपने आप में कैपेसिटी डेवलप होगा अपने को रूल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि दैट मीन्स दैट द महात्मा गांधी वाज वेरी मच सिंपैथेटिक टू द मोर प्रोग्रेसिव प्रिंसेस फॉर द वाई एज एग्जाम्पल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ इंडियंस टू रूल देमसेल्व्स। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा। एक पहला जो था रिसोर्स क्रंच। ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या देखा हमने फैक्टर, हमने देखा क्या फैक्टर देखा। फर्स्ट फैक्टर हमने देखा रिसोर्स क्रंच। ठीक है, रिसोर्स क्रंच। एंड सेकेंड फैक्टर वाज दैट वाज द complexity of the complication of the revolution। ठीक है, and the third was the Mahatma Gandhi, and fourth we talked about that limited resources we talked, where and the peoples, okay, peoples were people of the territories were also not willing, okay, not willing, people of that province were not also willing, okay. Now so we'll stop here and okay.